Welcome to Malik Bazar, Kolkata, home to one of the biggest second-hand car parts markets in the region. Get ready to explore a world where car enthusiasts and savvy shoppers come together to find incredible deals on auto parts of all kinds. Nestled in the heart of Kolkata, Malik Bazar is a bustling hub for automotive aficionados. Whether you're a car mechanic, a DIY enthusiast, or simply looking to save on car repairs, this place has something for everyone. From engines to transmissions, from tires to headlights, you'll find a vast array of second-hand car parts neatly organized in shops and stalls. Malik Bazar is like a treasure trove waiting to be explored. And it's not just about buying. If your vehicle needs repair, you're in the right place. Skilled mechanics in the area are known for their expertise in fitting these parts, ensuring your car runs smoothly. Malik Bazar isn't just a market, it's a community. People from all walks of life come here to share their passion for automobiles and find solutions to their car-related needs. As you wander through the maze-like lanes of Malik Bazar, you'll stumble upon hidden gems, rare finds, and unexpected treasures. It's a place where car enthusiasts can truly connect with the essence of automobiles. The sights, sounds, and aromas of Malik Bazar create an atmosphere unlike any other. It's a place where the old blends seamlessly with the new, where innovation meets nostalgia, and where every visit is an adventure. As the number of cars on our roads continues to rise, so does the concern over their environmental impact. Environmental impact of scrapping cars depends on proper disposal and recycling practices. To maximize the benefits, it's essential to ensure that scrapped vehicles are recycled efficiently, minimizing waste and pollution. Vehicle scrapping plays a crucial role in reducing environmental pollution caused by old or inefficient vehicles. It allows for the proper disposal of hazardous materials such as lead-acid batteries, motor oils and fluids, which can contaminate soil and water if not handled correctly. In a rapidly evolving world where the streets are lined with cars, what happens when these vehicles reach the end of their road? Welcome to End of the Road, unveiling the reality of car scrapping today, a documentary that delves into the world of car scrapping, exploring the environmental impact, economic opportunities, and challenges faced by the industry. In this journey, we'll explore the fascinating process of how a car reaches the end of its road and becomes scrap metal. Let's dive into the world of automotive recycling. See an exclusive tour of a Kolkata scrapyard, where we'll reveal the captivating journey of transforming a car into metal. If you're enjoying this unique content, be sure to hit the subscribe button and give us a thumbs up. And if you'd like a detailed step-by-step video of the car scrapping process, don't forget to let us know in the comments below.
now have an idea of how a car gets scrapped. Let's explore an interview with a scrapyard owner and a member of their staff. How many cars do you scrap per month? सर 25 to 30, मगर इसका कुछ नंबर का काउंटिंग सही नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कितने लोग करेंगे। ये तो जो कार स्क्रैपिंग होता है, ये तो मार्केट में है नहीं कि हम परचेज़ कर लिए। इसको परचेज़ करने के लिए बहुत से लोग का कॉल आती है कि हाँ इसको हमको सेल करना है। तो आज वो कॉल किए तो फिर विथिन 1 वीक, विथिन 2 वीक, विथिन 1 मंथ ऐसा जाता है। तो नंबर्स के लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे, मगर तकरीबन 25 to 30 मेरा पर मंथ हो ही जाता है यहाँ पे। 25 to 30 cars per month आप यहाँ पे जी scrap करते जी स्क्रैपिंग हो जाता है, एवरेज में हो जाती है। हैं। Then तो मतलब एवरेज बहुत बड़ा ही बिजनेस है। हाँ, एवरेज किसी मंथ बढ़ भी जाता है। वो ऐसा कुछ काउंटिंग हम लोग रखे नहीं है अभी। अब उससे लिस्ट पूरा रहता है मेरे पास कि कितने गाड़ी पर मंथ आती है मेरी, क्योंकि ये बहुत जगह होता है ये चीज़। तो सिर्फ मैं तो अकेला नहीं हूँ कि हाँ कंपटीशन बहुत है, रेट का कंपटीशन है। फिर जो कच्चे माल है 3 नंबर लोहा और ये कूचा, इसका रेट अप एंड डाउन होता है। तो इसके वजह से भी ख़रीद में हम लोग को डिफरेंट आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न्यू जो पॉलिसीज आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या आपका बिजनेस के में कभी इफेक्ट करता है? अभी तक तो सुना हूँ, आया नहीं है। ठीक है, उसके नहीं, वेस्ट बंगाल में चालू नहीं भी हो सकता है। उसके ट्राई में लगा हूँ। तो उससे तो कुछ अब टाइम आने के बाद मालूम चलेगा कि हाँ क्या क्या आ रही है, उसमें दिक्कत क्या आएगी। Do you know of a vehicle scrap recycling facilities, and do you want to be associated with one? ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा फील्ड है और स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग के पास जो कटता है माल, ये कच्चा माल होता है और बड़ा साइज होता है। जो इसको हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में या बंगाली में 3 नंबरा बोलते हैं। जो लोहा का टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा चदरा, जो अपना कार वगैरह जो भी 4 व्हीलर है, इसकी जो बॉडी होती है, तो इसको हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चैनल सिस्टम है। हम अगले को देते हैं, अगले इसको स्मॉल साइज़ करते हैं, वो अपने मशीन में डाल के बिस्किट टाइप पे इसको बोलते हैं। वो करने के बाद फिर वो आगे मतलब ये कर पाते हैं। Okay. How many cars do you scrap around the month? एक्चुअली ये कंफर्म नंबर नहीं है कि कितना हो पाएगा। मोस्टली 25-30 के लमसम पर मंथ जाता है। क्योंकि बहुत से कंपटीशन है, इसमें भी बहुत लोग परचेज करने वाले हैं। तो What challenges do you face in collecting and processing scrap materials? How do you overcome them? ये हम लोग के काम में बहुत सा डिफ़िकल्ट इसमें आता है। जैसे रेट का डिफ़िकल्ट, किसी से बात हुआ हमको कि हाँ मैं इसका ऑलमोस्ट प्राइस 20,000 दूंगा। कोई और पार्टी से बात हुआ, वो अगले जो गाड़ी का ओनर है उन्होंने बताया कि मुझे 20 का ऑफ़र मिल चुका है, आप कितना देंगे? तो वो 22 जाता है, फिर मुझे उससे आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये तो फेस एवरीडे का है मेरा। ये बिजनेस है, ये एवरीडे का होता है। हम लोग कितना भी सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, मगर वो एट एंड पार्टी का रेट जो होता है, एक्चुअली गाड़ी का प्राइस जो होता है, कार के प्राइस, वो बहुत लार्ज नंबर है प्राइस का। और जब स्क्रैपिंग करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो बहुत लो नंबर है। तो इसमें वो बहुत कस्टमर को भी एक लगता जी है। जी 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 आप लोगों को भी वो जी समझना कस्टमर को लगता है एक बैग कि ये गाड़ी तो मैंने 5 लाख में लिया था, अभी ये 30,000 रुपये दाम लगा रहे हैं, ये कैसे होगा? मैं कैसे सेल करूँगा इसको? नहीं सेल करूँगा। वो कुछ दिन वेट करते हैं, किसी और से दाम लेते हैं, किसी और से करते हैं, बाद में एंड ऑफ मेरे पास आते हैं। क्योंकि मेरे पास ये है कि हम कार स्क्रैप जंक्शन जो है, मैं एक सर्टिफिकेट इशू करती हूँ जो मेरे कंपनी का होगा। उसके बाद मैं आपको इंजन नंबर, चेसिस नंबर, नंबर प्लेट, वो सब मैं रिटर्न दे देता हूँ पार्टी को। वो सब तो उन लोग का जो हाउ डिड यू स्टार्टेड द स्क्रैप बिजनेस एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? एक्चुअली हम लोग का ये जो बिजनेस है, ये बहुत साल पहले से फैमिली बिजनेस है। मतलब ये लोहे का बिजनेस बड़े गाड़ी का था उस टाइम में, वो थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि नई नई मॉडल गाड़ी आ गई। तो उससे हम लोग कट के उसी मार्केट में थे, उसी का जानकारी था हम लोग को, तो फिर इस ये लाइन स्टार्ट हुआ
इसमें हम लोग का ऐसा है। Next question. What advice would you give to someone interested in starting their own scrapyard business? हाँ, ये बिजनेस सही है। कुछ इसमें मगर जगह चाहिए आपको अच्छी खासी, लेबर चाहिए जो कटिंग करे, फिर उसको सेल के लिए फिर जगह चाहिए आपको, पूरा आइडिया लेना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्या सेल करते हैं। मगर फील्ड में आने के बाद काम बेटर है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। And कोई advice? या फिर tips? हाँ, एडवाइस यही है कि कोई भी गाड़ी आप परचेज करें किसी से भी, तो उसका पेपर वगैरह सब कुछ चेक कर ले। गाड़ी पे फाइनेंस नहीं है या गाड़ी किसी और का नहीं है या कहीं और पार्किंग है, कोई और बेच दे रहा है, ऐसा नहीं हो। वो पूरा फुल अच्छे से चेक करने के बाद ही गाड़ी खरीदे किसी से, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये करने के बाद फिर कोई और लफड़ा उसमें नहीं आए, क्योंकि ये सब कच्चा बिजनेस है। ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता जी जी जी। Next question. To stay updated on market trends and change the impact of the scrap industry. नहीं, इसमें कुछ ऑनलाइन भी हम लोग का परचेजिंग होता है। जैसे मेरा एडवर्टाइज चलता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तो इसमें ये लोग देख के कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, फिर उनसे बात होती है, तो कुछ गाड़ी वहाँ से भी आ जाती है हम लोग की। कुछ है जो सर्विस सेंटर है, गैरेज है जहाँ पे पार्टी ने गाड़ी बनने के लिए दिया और गाड़ी का टाइम पूरा हो चुका है, आप नहीं चलाएंगे, तो वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मिस्त्री के पास, जो गैरेज मिस्त्री है, कि भैया कोई है तो इसको स्क्रैप करवा दीजिए। तो वो लोग भी कांटेक्ट करता है हम लोग से। फिर कुछ साइड एजेंट भी होते हैं जिनका काम ही यही है, वो करते खुद नहीं है मगर वो वहाँ से मैसेज पास करते हैं, फिर पार्टी से बात होती है, और जो दाम तय हुआ पे करके हम लोग गाड़ी पिक कर लेते हैं। बट ऑल पेपर चेक करके, विदाउट पेपर चेकिंग हम लोग गाड़ी नहीं परचेज करते हैं। There are misconceptions about the scrap industry. What do you like to address or clarify thoughts about this thing? हाँ, ये कोई भी पर्सन है जो गाड़ी अपना सेल कर रहे हैं, तो वो पहले वो चेक कर ले, सर्टिफाइड हो जाए कि हम जिनको गाड़ी सेल कर रहे हैं वो वाकई स्क्रैपिंग ही करेंगे या कुछ उसका गलत यूज होगा, वो देखना ज़रूरी होता है। जी जी हाँ, वो उनको भी देखना है और हमको भी देखना है कि जो ये गाड़ी मैं परचेज कर रहा हूँ ये सही गाड़ी है कि नहीं है, किन से ले रहा हूँ, एक्चुअल मैन है कि नहीं है वो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सा ये रहता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं ये गाड़ी स्क्रैप में ही देंगे, तो स्क्रैप ये कैसे होगा, कब होगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो 100% पार्टी को मैं अपना वीडियो सेंड कर देता हूँ कि आपकी गाड़ी स्क्रैपिंग हो रही है। बहुत से लोग होते हैं नहीं मेरा सामने होगा, तो उनको फिर उसका टाइमिंग होता है तो वो यहाँ आते हैं, उनके सामने हो जाता है वो, तो उससे वो बहुत लोग खुश होते हैं कि हाँ चलिए मेरा काम ये हो गया स्क्रैपिंग। What are the key factors you consider when determining the value of different type of scrap materials? ओके, तो ये हम लोग जब गाड़ी परचेज करते हैं ना, जब बात होती है तो गाड़ी का ऑलमोस्ट हम लोग गाड़ी जाकर परचेज नहीं करता हूँ, फ़ोन पे ही डील हो जाती है, पेपर वगैरह का ये करना। कुछ अगर नियरेस्ट रहा तो खुद चला जाता हूँ या मेरा एक बंदा है उसको भेज देता हूँ, वो चेक कर लेता है। तो उसमें डिफरेंट आइटम में जैसे बॉडी आता है ना, ये जो बॉडी आपने देखा है जो कट रहा था, तो ये ऑलमोस्ट बॉडी स्क्रैप हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। उसके बाद जो आता है इंजन, जो पार्ट बोलते हैं हम लोग, तो इंजन ऑलमोस्ट लोहा उसमें होता है, आयरन और कुछ एल्युमिनियम होता है उसमें, तो वो यहाँ से करने के बाद पूरा खुल जाता है। तो खुलने के बाद वो पार्ट बाय पार्ट हो गया, क्योंकि उसमें कुछ एल्युमिनियम लग रहा, कुछ पीतल हुआ, तो वो सब अलग अलग कर देते हैं और उसका अलग अलग रेट है। एक्चुअली इतना दिन से काम कर रहे हैं तो आइडिया हो चुके हैं कि हाँ किस गाड़ी में कितना वेट आएगा लोहा का, कितना 3 नंबर का, कितना तांबा का और कितना किस चीज़ का। उसके बाद 3rd नंबर आया टायर। तो टायर तो आप लोग जानते ही हैं कि सेकेंड हैंड टायर सेल होती है, रिम सेल होती है, जो कुछ सेल होने वाला है वो सेल में जाता है, जो स्क्रैपिंग होने वाला है वो डायरेक्ट स्क्रैप जो शॉप होता है, स्क्रैप जो हम लोग से लोहा खरीदता है उसके पास भेज देते हैं। उसके बाद 4th नंबर आया एसी। एसी भी वैसे ही है, एसी टूट के खुल के वजन हो जाता है, पाइप वगैरह उसका सब वजन हो जाता है। और 4th नंबर है इसका बैटरी। तो बैटरी को तो मालूम ही है कि बैटरी जो फिर दोबारा से उसको गलाकर उसको न्यू बैटरी बनाया जाता है, तो
तो वहाँ हम लोग स्क्रैपिंग के लिए उसको भेज देते हैं। एक गाड़ी स्क्रैप होने के बाद उसका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा में बिकता है या फिर नहीं value ज्यादा होता है? पार्ट ज़्यादा में बिकने का कुछ नहीं है। ये पुरानी मॉडल गाड़ी है, इसका रीसेल वैल्यू अब कुछ नहीं रहा। जितने भी स्क्रैपिंग होती है ऑलमोस्ट पुरानी होती है, नए मॉडल गाड़ी कोई स्क्रैपिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो पुरानी मॉडल गाड़ी जितना भी सब स्क्रैपिंग होता है या रीयूज में कुछ ऐसा गाड़ी आता है जो जैसे अभी आप देख रहे हैं मोटर वैन वगैरह बन रहा है तो उसमें पत्ती वगैरह लग गया, तो वो सब लोहा के रेट में ही जाता है। बहुत महंगा सामान कोई बोल के नहीं आता है, ठीक है। हाँ, वो इसमें सब स्क्रैपिंग में जाता है, महंगा सामान बोल के। रीसेल में इंजन बॉडी पार्ट में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ टायर। अगर टायर का अच्छी कंडीशन है टायर तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके जाता है, नहीं तो फिर वो भी बहुत लोएस्ट देके चला जाता है। और एंड स्क्रैप मार्केट में भी कौन सा पार्ट का ज़्यादा मतलब पे करता है या प्राइस ज़्यादा होता है? स्क्रैप मार्केट में नहीं ऐसा कुछ नहीं, वेट पे जाता है वो सब वेट पे जाता है। ये जितना भी स्क्रैपिंग होता है, इंजन बॉडी, आप तो अपने सामने देखें कैसे गाड़ी कटाया गया है, उसमें से कुछ यूज हो का सामान आएगा जो आपने देखा है, जो गाड़ी कटी है मेरी। स्पीडोमीटर जैसा देखा हाँ, कि कोई अपना सेकंड हैंड गाड़ी में खराब हो गया है स्पीडोमीटर में वो एक्चुअली एक गाड़ी कटती नहीं है यहाँ पे। ये कोलकाता में पर डे कितनी गाड़ी कटती होगी मालूम नहीं। तो स्पीडोमीटर जो लोग चेंज करवाते हैं वो सर्विस सेंटर जाते हैं, कोई गैरेज जाते हैं, तो वो लोग हम लोग के पास थोड़े आता है। वो इसका स्पीडोमीटर हुआ, फाइबर हुआ, अंदर का जो सेलिंग रबर होता है, ये सब ये टोटल स्क्रैप में डंप में चला जाता है पूरा। हाँ, ये प्लास्टिक बेड में चला जाता है। प्लास्टिक जो फिर रिसाइकिल होता है, जो दाना बनता है उसमें लोग ले जाते हैं, वो 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये केजी ले जाता है प्लास्टिक। बहुत अच्छे एक फाइबर खरीदने जाइएगा उसका दाम होगा 5-6 रुपया, मगर यहाँ पे हम लोग उसको 10 रुपये केजी सेल कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। कौन लेकर रखेगा इतना दिन, कब कौन सी गाड़ी आएगी, एक मॉडल तो है नहीं। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you manage the logistics of transporting and storing large quantities of scrap materials in your yard? या एक्चुअली हम लोग लार्ज क्वांटिटीज़ में रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सा जगह चाहिए। इसलिए मेरा 2-3-4 गाड़ी यहाँ पे रहता है। वो लेबर का प्रॉब्लम होता है कभी कि यहाँ लेबर नहीं आया, गाड़ी कट नहीं पाया तो गाड़ी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा बोले तो ज़्यादा, खूब ज़्यादा नहीं, 6-7 होगा। 2 दिन नहीं आया तो 6-7 हुआ, 8 हुआ। तो इसको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में कोई भी माल हम लोग रखते नहीं हैं। ये जितना भी कटिंग होता है ये सब एक जगह स्टोरेज होता है। एक गाड़ी का माल हुआ, हम लोग इसको जो सेकंड पार्टी है जो उसको वहाँ पर जाके बिस्किट बनाते हैं, मतलब कट कर उसको चाँप के छोटा छोटा पीस बनाते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी कटता है तो बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, 4 फीट 5 फीट 3 फीट ऐसा होता है। तो उसके लोग छोटा कर देते हैं, छोटा साइज़ कर दे तो वो लोग ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग में आसानी होता है, जब वो हो जाता है तो ट्रांसपोर्टिंग आसानी होता है, तो वो लोग को दे देते हैं। और इंजन हुआ तो इंजन पूरा खुल जाता है। खुलने के बाद जो एक छोटी क्वांटिटी हो जाती है उसकी, छोटी तो वो एक जगह स्टोरेज होता है। एक गाड़ी का माल हुआ, हम लोग उसको सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि उतना स्टोरेज करने के लिए तो फिर हम लोग के पास जगह भी नहीं है, तो इसलिए जगह का ही प्रॉब्लम है। ओके। एंड उससे तो एक गाड़ी से तो लोहा भी निकलता है, हाँ फाइबर हाँ, भी हर निकलता चीज़, है, and लोहा, फाइबर, फिर आपको ये एल्युमिनियम, पीतल, वो क्या आप अलग अलग करते हैं? हाँ, सब अलग अलग होता है। सब अलग अलग होकर सब अलग अलग स्टोर नहीं होता है, अलग अलग रखाता है और अलग अलग ही उसका सेल हो जाता है। जो जितने क्वांटिटी में का सेल का उसका सिस्टम है कि हाँ एक गाड़ी का ये माल हो गया तो हम लोग इसको भेज दिए, बस यही से। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फ्रॉम कार स्क्रैप जंक्शन। हाँ, आपका नाम क्या है? अतुल यादव। अच्छा, आप कहाँ से है? यूपी से आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, नौकरी। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन से काम करते हैं आप? वही लगभग 3 साल से। अच्छा, क्या काम करते हैं, आपका काम क्या है? अब गाड़ी कटाई का होता है यहाँ पर काम। अच्छा, गाड़ी कटती है। ठीक है अतुल जी, तो आपसे मैं 2-3 सवाल कर रहा हूँ। क्या आप जब यहाँ पे आए थे तब क्या मतलब इतना गाड़ी यहाँ पे कटाई होता था? नहीं, शुरुआत में कम हो रहा था, लेकिन इस समय कटाई हो रही है। अच्छा, तो अतुल जी आपने बोला कि आप यहाँ पे 3 साल से काम करते हैं, एंड हम सबको ही पता है कि जब गाड़ी एक डिसमेंटल होता है तो गाड़ी में बहुत सारा
मतलब हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस होता है, कूलेंट रहता है, उसके बाद डीजल, ये सब बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या आपका मतलब हेल्थ में कोई असर पड़ता है? नहीं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एसी गैस जो निकलता है, हम लोग जैसे निकलता है तो मास्क लगा लेते हैं अपना, अच्छा। ठीक है। और ये कूलेंट है जो निकलता है, उससे कोई दिक्कत वैसे है नहीं, कूलेंट से भी नहीं कोई दिक्कत है। हाँ, और मास्क अपना लगाते रहे, कोई दिक्कत होता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो यहाँ पे डिसमेंटल का काम करते हैं, तो एक दिन में आप यहाँ पे कितना गाड़ी मतलब कटाई होता है या फिर आप करते हैं? जैसे हम लोग का टाइम है 9 बजे से, 9 बजे यहाँ पर आते हैं। अगर अकेले हैं और या 2 आदमी हैं तो 9 बजे से 4 बजे या 5 बजे तक वही गाड़ी कटता है, 8 घंटा काम होता है। और अगर 2 लोग हैं तो एक गाड़ी तो कट जाते हैं। और हम लोग की जैसे टीम है, ठीक है, और टीम 4-5 लोग रहते हैं। अगर 4-5 लोग हैं तो दिन में वही 3 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी कट जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और लगभग एक गाड़ी कटने में आप लोगों का टीम होगा अगर तो एक गाड़ी कटने में कितना टाइम लगता है? अगर जैसे 4 लोग हैं हाँ। तो एक गाड़ी है तो उसमें ज़्यादा से 3 घंटा 2 घंटा जो भी लगे, अगर टीम है तो। और अगर अकेले हैं या 2 लोग हैं तो लगभग 6 घंटे 5 घंटे लगते हैं अच्छा। एक गाड़ी काटने में। और आप मतलब मैक्स टू मैक्स दिन में कितना काम करते हैं? मैक्स में लगभग 8 घंटा काम करते हैं, 8 से 9 घंटा। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू अतुल जी।